Now, in last video we have discussed question number 4, 5 and we were doing question number 6. What is question number 6? An officer wants to arrange 2,02,500 cadets in form of a square. How many cadets are there in each row? So this is the same question as question number 5. In question number 5, we have arranged trees so that the number of rows equal to number of column. Now we want to arrange these cadets in the form of square, and in square number of rows and number of columns should be same. So this is the question, same question as question number 5. In this question we have also find out the square root of 2,02,500, and the number which comes out to be, that will be the required number of cadets that we want in each row. Therefore, number of cadets in each row will be square root of this number. Okay, now we'll find the square root of this number. 202,500. 2 1 is 2, 0, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 5 is 10, 0. Now 2 5 is 10, 1 नहीं गया इसके 0, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 2 5 is 10. Now 2 2 is 4, 2 5 is 10. Okay, 2 3 is 6. ये तो 2 पे नहीं जाएगा ना, ये तो किसी चल लेते हैं, हम इसको ऐड करके देख लेते हैं. 5 2 7 6 13 5 18. तो 18 है तो 18 कितने 3 से जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 2 बच गए, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. Now again with 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 2 is 6, 3 5 is 15. Now again with 3 1 is 3, 2, 3 8 is 24, 3 7 is 21, 3 5 is 15. ये तो जानते हैं ना आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करना. Now again with the table of 3 6 is 18. Okay, and 3 2 is 6, 3 5 is 15. अब नहीं, देखो 5 2 7 और 6 13, अब नहीं 3 के टेबल से जाएगा, अब 5 के टेबल से. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25. Now 5 2 is 10, 5 5 is 25. So 5 5 is 25 and 5 1 is 5. So this is the prime factorization of this number. Now we can easily find out its square root. अब देख लो, how many 2 are there, 1 2 3 4, 4 3s are there, 1 2 3 4, 4 5s are there. Okay, so this is the prime factorization of this number. Now we have to find out its square root. तो इसका पेयर बन गया आपका, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका. तो वी विल लेफ्ट विथ 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Okay, so 5 5 is 25, 3 is 75, 2 is 150, 3 is 450. So 450 is the number of cadets in each row. So this will be equal to 450. So this is the number of cadets in each row equal to square root of this 450. Now question number 7 is, the area of a square field is 5,184 meter square. A rectangular field whose length is twice its breadth has its parameter equal to parameter of the square field. Find the area of the rectangular field. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें. ठीक है. Now here we have given square field. Okay,
यू नो व्हाट इज स्क्वायर, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, और इसका एरिया हमें दिया 5184 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 5184 मीटर स्क्वायर है। आपको याद होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये आपने पढ़ा होगा। साइड इंटू साइड का मतलब क्या होता है, साइड स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई हो गया 5184, क्लियर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, स्क्वायर जो है और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर आप यहां से स्क्वायर साइन हटाते हो तो यहां स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आपने साइड निकालनी है तो ये जो स्क्वायर हटेगा यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, वो नंबर जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 5184 आ जाए। और हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो 5184 का स्क्वायर रूट है वो उसकी साइड होगी, क्लियर। तो अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5184, तो उससे हमारी स्क्वायर की क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। नाउ वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। नाउ 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्लियर। टू टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18। नाउ फिर विद द टेबल 2 कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। नाउ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। Now 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसको 3 के टेबल से कर ले, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। So this is the prime factorization of 5184. Now we can find out its square root. So how many 2's are there? 1 2 3 4 5 6, and how many 3's? 1 2 3 4. Okay. Now this is the prime factorization of 5184. Okay. Now we want to find out its square root. तो ये फिर ये बन गया, 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 ओके। नाउ इन दो 2 की जगह 2, इन दो 2 की जगह 1 2 3 और 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। So this is the side of the square. So what was our side? Side is equal to square root of 5184. Side equal to 72 meter. So this is the side of square. Side of square is equal to 72 meter. अब ध्यान से आपने समझना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, और एक आपका क्या था, स्क्वायर फील्ड था। तो उन्होंने क्या कहा कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है। तो उसको अगर हम एक्स मान लें, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, तो इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है। आई समझ आपको बात, कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, सो लेंथ ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने एक्स मान ली और लेंथ कितनी होगी, 2x। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू एक्स। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगी 2x। रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लेना इसको, रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ दूसरी थिंग कि इसका जो पैरामीटर है वो स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है। दोनों का पैरामीटर क्या है इक्वल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर क्या होता है और स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर क्या होता है। तो ये भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा। रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है 4 इंटू साइड, ये होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 इंटू एल प्लस बी और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 4 इंटू साइड। अब 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड की, हमने 2x ली है और ब्रेथ कितनी है x। 4 into this is the side of the square that we have already calculated, that is 72. Now 2 into ये जब यहां कोई साइन होता है इसका मतलब इंटू होता है, तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x। 4 इंटू 72, 2 3 जा 6x, 4 इंटू 72 x 6 को उधर ले जाओ, 4 इंटू 72 अपॉन 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 72, x इक्वल टू 48। ओके, so this is the value of x. So this is the value of x. Now what is the breadth? Breadth is x, that is 48 meter, and length is 2x. x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, 2 into 48 96 meter. So this is the length and this is the breadth. Now we have to find out the area of this rectangular field. Now area of rectangular field will be equal to L into B. पता ही आपको एरिया रेक्टेंगुलर कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज 96 एंड ब्रेथ इज 48। अब आप 96 को 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 96 को 48 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस यू कैन डू इन रफ। 96 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4608 मीटर स्क्वायर। सो 4608 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। सिंपली आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। तो विद दिस दिस वर्कशीट इज ओवर। नाउ what is homework for you? Complete this worksheet number 3. Complete, okay? And in next video I will discuss with you worksheet number 4. This is very good exercise, next worksheet number 4. Thank you very much.